कभी कोई ऐसा केस एनकाउंटर करा है which ऑफिस से बाहर आने के बाद भी stayed with you या somewhere you got affected? So I think the best example would be matrimonial matters, rather divorce and custody matters. Because reason being, आप as a lawyer वैसे you have to be independent of the opinions of other people as well. बाहर का चल रहा है and अपना भी आप personal opinion उसमें ले सकते हो. But कहीं ना कहीं since you're a part of a society, आप भी घर जाते हो, आप भी देखते हो. You also have a family. Your siblings are also married. Your parents are also married. तो वो बड़ा अजीब सा एक लगता है देखते कि फिर घर में कोई ऐसी चीज होती है तो ऐसा लगता है oh it can lead to a divorce. So that is always because आपने उसका highest extent देख right रखा है. highest extent देख रखा है. ये भी देखा हुआ है कि वो एक इतने molecular level पे शुरू हुई कोई झगड़ा और वो इस लेवल तक पहुंच गया. तो घर में भी फिर कोई झगड़ा होता तो सीधा दिमाग ये जाता है कि ओ because you tend to think the extreme कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है it can lead to this and then you start overthinking about it कि ऐसे हो जाएगा फिर मैं क्या करूँगा फिर इसका क्या होगा फिर उसका क्या होगा. So that is there and more traumatizing is I think the child custody matters which we also see in courts कि माँ और बाप दोनों I think equal होते हैं किसी एक बच्चे के लिए and then they are fighting and they are like bad naming the other parent. It is very weird and it is very traumatizing कि कोई मतलब डैड और फादर अपनी उसकी ही मदर को बोल रहा है तो एक्चुअली में अफेक्ट तो चाइल्ड को ही होता है and it is traumatizing for him also. So this all happens in front of the child? Not most of the time, but yes, sometimes it is at the discretion. But होता है उनके सामने और उनके सामने बच्चों के सामने क्या वैसे भी लड़ाई है तो देखता ही देख ही रहा है. ऐसा तो नहीं you can't keep him away from it. या फिर अगर वो घर जाके अब एकदम से ये डिसाइड हो जाएगा कि फादर के साथ रहेगा तो वो तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि मदर का है क्या हुआ आप कब तक उसको झूठ बोलोगे. मतलब 10 years 11 years का बच्चा इतना होता है कि वो समझ जाए उस चीज कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है. उसके लिए आगे आई थिंक आगे तक भी एक इफेक्ट रहता है जिसको आप शायद चाइल्डहुड ट्रॉमा यू नो बेटर कहते हैं. सो दैट इज आल्सो देयर एंड इट अफेक्ट्स अस आल्सो बिकॉज अच्छा नहीं लगता वो देख के पीपल क्राइंग पीपल यू नो एक्चुअली बेगिंग. और वो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के पास भी हमारे ऑफिस में आके नहीं सर हमें ये करवा दो. सो इट बिकम्स वेरी इमोशनल उस टाइम पे कि मतलब आपका मन तो होता है कि यार मैं कुछ कर दूं हेल्प कर दूं बट आप कर नहीं सकते. आप तो you can go by the facts, you can go by the evidence पर आप कुछ कर नहीं सकते. Do you feel ये कुछ ऐसे cases होते हैं whether you win or you lose you have evidence you feel like yeah you morally lost in these matters and that is why I think मैंने switch भी इसलिए करा. I used to do these cases matters before. मैं corporate में आया भी इसलिए क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक traumatizing था. So कि after all gradually I also had a plan to like you know get married and family. तो वो थोड़ा सा उसमें I think मेरी judgment में कहीं मेरे बार बार affect करता था कि यार this is not you know not the right thing. Marriage is not the right institution at all. Like you get negative about this. right. फिर मतलब ऐसा ही लगता था छोड़ो यार शादी करके करना ठीक ही है जैसे चल रहा है. But that is again ना मतलब आप अपनी जिंदगी अपने करियर के हिसाब से इतना तो नहीं चेंज कर सकते. तो that is it. कोई ऐसा specific moment कभी ऐसा हुआ कि when you went home disturbed or maybe that कोई ऐसा चीज सोसाइटी का you have come across जिसने एक बड़ा question mark कभी create करा हो in your mind? I think this is about again I can relate it to matrimony matters only. Reason being मतलब in-laws भी आते हैं लोगों के और आज भी वो orthodox और एक रूढ़िवादी सोच दिखती है. Even if you are staying in a city like Delhi और आप दिल्ली बॉम्बे कोलकाता which are like tier 1 cities और आज भी आप वो देखते हो शहर से अच्छे खासे लोग like who are doing good in life and if you see their lifestyle you'll be like yeah modern lifestyle everything. और उनकी सोच ऐसी मतलब आप आज भी शादी को या एक लड़की को उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हो जो आज से 200 साल पहले था. बस आप लाइफस्टाइल से मॉडर्न हो गए हो बट आपकी सोच आज भी वही. और मैं ट्रेडिशनल में नहीं कहूंगा उसको खराबी है क्योंकि वो पहले भी खराबी थी इसलिए इतने चेंजेस आए बट वो आप चेंजेस को अडैप्ट ही नहीं कर पा रहे. आज भी आपको लगता है इसने खाना नहीं बनाया और इसने बंदा डिवोर्स कर रहा है. Is it? Yeah, that happens. Reason तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ reason start at a very molecular level. तो gradually reasons बन जाते हैं. वो ego it's basically fight of the ego. Male ego है इधर अब female ego है they are also equally independent and I think doing better than guys. So वो ego clash जब होता है ना तो फिर चीजें खराब हो जाती हैं. And she has to ultimately go home like go to somebody else's place. तो उसके लिए वैसे भी adjust करना पड़ेगा.
और प्लस ये सारी चीजें तो बिकम्स अ ह्यूज मेस एट द एंड ऑफ द डे वो अपने घर लौट ये है सो दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग टू सी कि आज भी बिकॉज ऑफ दोस जस्ट बिकॉज ऑफ दोस थॉट्स और बिकॉज ऑफ दैट कल्चर दैट यू कमिंग फ्रॉम आप उस रीजन की वजह से किसी दो लोगों को सेपरेट ही कर रहे हो so that is a question mark on the society I think what matters is the happiness of everybody उसके बाद डिवोर्स के बाद भी कौन सा खुश रहता है कॉन्सिक्वेंसेस तब तक लास्ट तक जब तक आप हो तब तक आपके ऊपर फिर वही अगेन सोसाइटल प्रॉब्लम धब्बा लग गया कि ये तो डिवोर्सी है अब आप कहीं पे भी जाओगे तो लोग आपको सिंपैथाइज भी करेंगे कोई बात चाहे वो खुश भी हो अंदर से कि मेरा डिवोर्स हो गया ठीक है समटाइम्स इट इज ओके दैट इज इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम इट इज रॉन्ग somebody is in a toxic relationship and they need to get out so that is all right और वो अच्छी बात भी है that there is that provision we have but मतलब sympathize करना और उसको फिर वो करना तो वो पर्सन के लिए बहुत ज्यादा traumatizing होता है हम फिर भी शायद कुछ वक्त बाद भूल जाते हैं उसको but वो भूलने देता नहीं है क्योंकि कोई ना कोई दूसरा आ जाता है so that is वो एक फील्ड ऐसी है जो मेरे को ऐसा लगता है कि it is very much traumatizing as a matter as a personal thing everything it affects everything sounds interesting बाहर से but internally जब आप डील करते हो कोर्ट में जाते हो बहुत अजीब लगता है सेटल हो जाए तो बेहतर है बहस जब होती है तो बहुत बुरा लगता है because people can go to any extent but हाँ गाली गलौज बहुत चीजें होती है कुछ भी बोल भी देते हैं आपस में कोर्ट में भी बोल देते हैं एक दूसरे मार पिटाई सारी चीजें होने लग जाती है रात में 12 बजे फोन आ जाता है इसने मेरे को मार दिया पुलिस वाले को बुला दिया क्या कर सकते That's true what you said yeah entertaining लग सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी घर की सिर्फ स्टोरी है but Right. actually when people are going through it there are lives जो affect हो रही है उससे so and again coming from you because personally if I tell you I don't hear a lot of people from your profession talking about these things with a lot of emotions तो या तो ये भी समझ सकते हैं कि इतने सालों से देखते देखते somewhere they have become immune to it yeah So, but yeah, that's a wonderful thing. So, do you see now, because you are somebody who gets to see a lot what is happening in the society on different fronts, right? चाहे हम corporate से related बात कर रहे हैं या banking में भी कर रहे हैं, but you have an overall idea. What would you pick कि अभी कुछ time में कुछ particular economic sector या segment की बात करें कि ये वाली problems बहुत बढ़ गई हैं in the society? And because of which those cases have increased a lot in last maybe 5 years or something, 5 decades. I think my answers are still going to be same. After COVID, we have seen a surge personally with our firm and my lawyer friends also in the divorce. Is it? Reason being, I think COVID ने लोगों को ना साथ रहने पे मजबूर कर दिया. आजकल जो couples हैं, if you're saying like most of them are like both of them are working in the emergency. तो आप क्या करते हो 5 दिन तो आप ऑफिस में ही हो you're going morning में you're just waking up going coming back home eating dinner sleeping nobody even has the energy to talk to each other सिर्फ इतना होता how was your day okay fine so on and Saturday you're partying most probably Sunday आप घर के काम करते हो क्योंकि आप दो लोग हो अब पीछे से कोई वो तो सिस्टम है नहीं and Monday back to work COVID में when you were there for each other like 24/7 then people started realizing यार ये क्या कर रहे हैं like who is she who is he I don't know her this is not the person I married. So these things came like very much during that COVID. After the COVID time and during the COVID time, I think we have seen that surge in those divorce matters a lot. During COVID also? Yeah, because some people couldn't take it. Legal opinion को दे सकते थे उस time पे भी, and people started living separately also during that time कि नहीं रह सकते थे साथ. So that in a matter of few months. Yeah, so they realized it कि यार क्या हो रहा है. ऑफिस में उसमें आपको पता नहीं चलता, but आप खाली और आपके को कुछ नहीं है तो ऐसा लगता है कि नहीं निकाल सकता ये क्या क्यों बैठ गई it gets irritating because everybody feels like कि इतने इंडिपेंडेंस की आदत हो गई है अब मैं घर में भी बंद हूँ एक तो वैसे भी it was not a bad like not a right face exactly it's such a bad thing that happened और apart from that ये चीजें भी बहुत ज्यादा हुई so वो सर्च तो उस टाइम देखा था and that was immense people couldn't stand each other I think that is it. And after that also, if you're talking about the other surgeries, so these basic problems, like people are now more educated and volatile towards societal problems over. मतलब पहले उसका ठीक है किसी की लड़ाई से लड़ी होगा 8 पड़ोस वाले आके शांत करके सुलझा देते अब तो कोई पड़ता नहीं है अब क्या होता है 2 बंदे लड़ रहे तो वो उस एक्सटेंट तक चलेगा लाइक अ पार्किंग इशू होगी
सो अगर दो बंदे लड़ रहे पहले होता तो फिर सोसाइटी का कोई बंदा आ गया या कोई बंदे आ गए उनके रिलेटिव्स आ गए उन्हें अलग अलग करते चलो शांत हो जाओ हो गया। अब क्या होता है अब तो मतलब एक दूसरे को मार पिटाई भी कर देते एंड देन पीपल आर दैट मच एजुकेटेड अबाउट द थिंग्स उन्हें ये भी पता है मैं इसके ऊपर केस फाइल कर सकता हूँ 2 मिनट में पीसीआर भी बुला लेते हैं एंड 2 मिनट में एफआईआर भी कट जाती है एंड दैट प्रोसेस स्टार्ट्स। पहले नहीं होता था पहले लोगों को डर भी लगता था ये काम करने यार इज्जत अब इज्जत इससे नहीं होती उन्हें लगता है कि इज्जत ये है कि मैंने केस फाइल कर दिया आई एम द सुप्रीम आई एम द सुपीरियर पर्सन बट वो बाद में फिर रियलाइज भी हो जाता है कुछ लोगों को कि भैया दूर रहो मतलब दैट्स हिंदी में बोलते हैं ना कि काले कोट वाले और सफेद कोट वालों से दूर रहना चाहिए सो दैट वेरी मच कम्स देयर जब वो उस प्रोसेस में घुसना पड़ता है तो फिर उन्हें रियलाइज होता है कि हम कहाँ फंसे उस टाइम तो आपने कर दिया ईगो में बट अब क्या करें फिर एट द एंड ऑफ द डे आधे टाइम यही हो रहा होता है कि एफआईआर आप कैंसिल करा रहे हो तो या रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर मत लिखो एफआईआर सो ये भी चीज है so that surge is there because people have become I think more volatile emotionally volatile also and सब परेशान like काम करने ये भी करने वो भी करने सारी चीजें करने सब परेशान होकर रिलैक्स नहीं होते तो कुछ भी छोटी सी बात होती कहते हैं यार खत्म कर एक टाइम Also, I feel एक तो information access body भी हो गया, they know how to do it, and second patience खत्म हो गया लोगों के पास। हाँ, that is very true.